Okay, so we'll be discussing about uh, it's I've written here as understanding and prospects of policy making, but it's mainly to give you an idea about what kind of career or future prospects are available with policy making or public policy. So so we'll be dealing in three stages of this presentation, that why policy, good policy is important, and next two stages will be the policy is there to support the governance, not to change the government. So policy or policy making or effective policy making and policy as a philosophy should be parallel to the governance process. And it's not like if through policy making we are against the government or governance process. So enriching the governance process, policy is one of the important tools that we can have. So how it works, we'll be learning it later also. But currently, I'll be majorly focusing about important points of policy making and policy process importance. So the thing is that everything that you see around yourself, and I was talking the same thing earlier also. So that you see poor people roaming around the roads, and people are homeless, and childs and children are roaming around this traffic lights and showing some tricks to earn money or get money from you, selling pens to you, all those things that you see. I'm just taking these examples because you guys are you frequently encounter this type of things. But if you are from rural setup, or if you are from a small town or interior के setup से अगर आप हो, तो you must be getting some more exposure of policy failures, like broken roads, no street lights, the entire ये traffic jams, every problem that you see, and you can find it out, or you can just relate it with some or some other policy flaws that happened earlier. So so what happened last year, I took a class about the same thing, and I told one of my students to write it, the script, the class. So there was a line he wrote, and I just kept that line as it is. So you can just read this line: look around, wherever you spot a flaw in the ecosystem, consider that as a failure of policy that was implemented by a state, and or not implemented by a state. It's not like for everything there was a policy, for every problem there was a policy. Government has comfortably ignored many problems to not to work upon it or not to bring any policy over it. The failed policy had various loopholes, and its implementation and execution process. Why it is there? See, this line has a meaning. So any policy which has been failed, or which could not work as per the expectations, there are numerous reasons behind this, and one of the foremost reason is because we ignore the professional outlook or professional component in creating those or implementing those. So I have written some of the problems that you see: roads with potholes, garbage on the street, faulty street lights, untrained teachers, doctors, engineers, etc are all consequences of failed policies developed by our so-called policymakers. So it's not just limited to these problems that have been mentioned. It's about every problem that you see. So all this gives a birth to the need of trained policymakers. And see, trained policymaker doesn't mean only the person who knows policy only. It's about person who knows the specific field also. So now we need a twin specialization in a person to make him a professional policy maker. One, and how policy works and how policy is being created, and other in the field where the policy is being made. So a person who is good in health policy might not be as effective in educational policy matters. So now it's not just one skill that I'm looking for, that we are looking for. It's like twin skills. One which belongs to policy, and second which belongs to the component or field or area where the policy maker is working. So the government, the mechanism, the entire manpower of government might not have a specified consultant or specified professionals for these things. So we also need parallel organizations, non-government organizations or think tanks to support government or even private companies as well. Because we must have seen now the private companies or big private companies or corporates are working for the entire population,
and there are product and services which are being spread to the larger mass. It's not like those people who are those people who can afford can only buy the service, like you can see the phone services or desk antenna services and all the kind these kind of services. Now these kind of services are being used by the entire population. So anything that they do to pitch their product or services to people, policymaker can also be very a important resource there. So you must have seen, or you will see ahead that even the corporates are also hiring these policymakers because of their utility in those dealing with those people or public matters. So, the thing I was telling you about was the policy as a governance support. How policy? So first, I will try to know that what are the various stages of policy making or policy management. So you'll be finding that if any policy is not existing from the not existing, so for a new policy you need to realize or identify that there is a need of uh, policy, or if there is already a policy, you'll realize that there needs a need a radical change in that particular policy, like you must have seen these days. So the government has come up with a new education policy or new health policy. So why this is new, this new part has been added because the earlier one was drastically changed to make it new. So radical change is important, and that realization that there is a change which is needed, or the change is needed, is the first step of policy making. So then you identify what are the changes that we might need or we can get into the previous policies, and to bring or to be confident over those changes and those realizations, you need to do research. And this again is a very important profile for policymakers, and research for policy. So and all these steps that I'm discussing here, every steps for every steps there will be a professional need or requirement for policy, the government or system from policymaker sides. So even you as a student of policy making can find your suitability in any of these process, and some things which will come with the experience and age. So the research is very important area, important part of policy making. You need to find out the gaps, you need to find out the different other variables which is impacting the same thing. Like education is being impacted by economics, economic yeah, income. Similarly, health is being impacted by technology. So while you are working in health, you cannot ignore the other parameters of the society or the ecosystem. So research is an important thing here. Then you will have to find out uh, with the policy what goals or what targets you want to achieve. So uh, land miles or not milestones or the measurements that you want to achieve, and these measures, these goals should be very much realistic, and there are numerous problems that we find here, that sometimes the goal is too high because you cannot say we'll be achieving less than that. See, when a government says कि हम बीपीएल के नीचे वाले लोगों को हाउस मतलब हाउसिंग स्कीम के थ्रू हाउस देना चाहते हैं. So if there are 67% people who are living under BPL, so you cannot create a policy which says कि हम target रखते हैं 10% BPL के लिए. So now the big problem is here कि फिर आप इसको इस पूरे को ही टारगेट बनाना पड़ेगा, ये पूरे का ही आपका गोल रखना पड़ेगा, and you can find it and do it in stages, है ना. तो स्टेजेस डिफाइन करना और उसके लिए भी रेशनली टारगेट पॉपुलेशन को या फाइंड आउट करना कि किस एरिया से आपको स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, एंड you can have numerous other things that is there in drafting the goals, कि किस पर्सपेक्टिव से आपको करना है, किसको मतलब दूसरे पॉलिसी से आपको कितना हेल्प चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आपको गोल ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू कैन फाइंड स्ट्रेटजी फॉर दैट. बिकॉज वंस यू डिसाइड कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अचीव, है ना, उसके हिसाब से यू नीड टू क्रिएट अ एग्जीक्यूटिबल स्ट्रेटजी ना. यहाँ पे कई चीजें आती हैं, जैसे मान लो कि अगर आपने कोई प्रोसेस डेवलप किया या स्ट्रेटेजिक प्रोसेस आपने डेवलप किया, and the system that you have to implement that process is not efficient or capable enough to run that process.
एक तो मैं हम फिर से यहाँ पे बहुत शॉर्ट में डिफाइन कर दें कि हम कोई भी काम करते हैं वो वी डू इट इन अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस इज जस्ट अ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू, एंड वेयर डू वी रन दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड सिस्टम। तो सी जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की जो टोटल मैकेनिज्म है या मैन पावर है या जो उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी का स्ट्रक्चर है, दैट इज अ सिस्टम, and we run the policy process over that system. So if system is not efficient or not capable enough to run that process, तो वो strategy अच्छी होने के बावजूद भी एक failure strategy होगी, है ना? And see, मतलब all these steps that we are talking here about, there can be numerous flow and all the steps. तो यहाँ पर वाला भी कई बार बहुत important हो जाता है कि we create goals and we create a strategy for which we are not capable of. And मुझे तो ऐसा भी लगता है, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इट्स जस्ट माय ओपिनियन, कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द काइंड ऑफ गोल्स और द काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट दे हैव क्रिएटेड without drafting the strategy, and even the strategy part that they have mentioned, our entire system of education and the educational infrastructure that we have is not capable enough to run that strategy. तो ये भी एक तरह का पॉलिसी फेलियर है दैट वी सी, विच इज वेरी ऑब्वियस टू सी, बट समटाइम्स वी हैव टू इग्नोर, और probably मतलब for coming government will take मेजर्स ऑफ इट ऑल्सो। कई बार क्या हो जाता है कि हम पॉलिसी सिर्फ बनाते हैं टू मेक इट अ मार्केटिंग टूल फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, but they know कि only part of this entire strategy can be implemented and can be realized in ground. So once you start a strategy execution process, you need to have a control mechanism. That again is very important job to be done, and the entire corporate or entire management is the study of entire the management as in science says that if you have a process and which is not controlled, it will get changed, and it will change in order to keep the process ineffective. Okay, so no process by itself evolved as a good process. So अगर आपका control mechanism नहीं है तो आपका process die करेगा, है ना? You can just consider it like कि वो minimum chaos को find out करना चाहेगा। तो अगर आपका एक process है which is has been made by multiple activities और आपने उस पे control mechanism नहीं लगाया, तो gradually it will get die. तो उसके लिए कंट्रोल मैकेनिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के सेंस में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू क्रिएट अ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर दैट, क्योंकि जब फैक्ट्री होता है तो उसमें तो हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और कई सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं, सिक्स सिग्मा, ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। बट व्हेन द प्रोसेस is of policy and public policy which is being implemented for the larger part of society or geographical area, so creating a control mechanism is very difficult। ठीक है, और ये ज्यादातर मैं challenges के टाइप से बात कर रहा हूँ, and you can just find out and you just realize what kind of potential is there, है ना? जितनी challenges है उतनी ज्यादा potential है, because everything that you do and in term of study or create making yourself capable is to you are making yourself a fighter for those challenges. You can just deal with those challenges. तो जितनी ज्यादा challenge होगी किसी stream में, उतनी ज्यादा career और उतनी ज्यादा growth का वो होता है, scope होता है। So lastly, there must be a feedback mechanism, and it is very important. See, even in India, मतलब इतने सालों का हमारा democracy है, we don't have any program evaluation body with us. हमारे पास CAG है, which is basically financially audit करता है, but we don't have any organization which audits the projects or government policies on the basis of their outcome, है ना? तो हमारे पास जो इवैल्यूएशन नॉट इवोल्यूशन इवैल्यूएशन का जो वो है बॉडी है, वो या तो है ही नहीं, और इफ एनी टाइम वी डू इट इन वेरी मतलब होता है ना ये लाइट मैनर। सो इवन मतलब मुझे ये याद है कि वन साइड इन कॉलेज के जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन की पूरी डिपार्टमेंट है, and the lady which was heading that department, she was here in India, तो उनका एक program था, तो she was very amazed that India is a big country, and since last 70 years of independence we have come up with numerous policies and projects and mega projects, and we did not evaluate any of them critically. So why there is a need of critical evaluation of policy? Because
while knowing कि what are the things that has been critical to success, हम उसको repeat कर सके, or anything that has been hindering or impeding the success of that policy, we can remove that in further projects. और दूसरा कि people who are responsible for the success of that policy, they can get punished or not punished even, तो they can be identified as a person कि इनको ये projects नहीं देने हैं, या अगर कोई किन्होंने अच्छा काम किया तो हमें वो प्रोजेक्ट्स देने हैं. सो फीडबैक मैकेनिज्म इज स्टिल नॉट देयर, एंड दिस इज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन वेयर इंडियन पॉलिसी मेकर्स और इंडियन पॉलिसी डिवीजन नीड टू वर्क. ठीक है. सो इसको अगर दूसरे दूसरे सेंस में बात की जाए, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी फिर बताया भी था पहले भी कि जो पॉलिसी मेकिंग है, जैसे कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी बनती है, तो कॉर्पोरेट को सिर्फ एक जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो इंडियन बिजनेस सिस्टम है, उसके कॉम्प्लायंस में रह के अपना वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एंड दे आर डीलिंग विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी एंड लेस अमाउंट ऑफ पर्सन एज एन कस्टमर. बट अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करते हो, तो इनको पहले लीगल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड एक लिमिटेशन इनके साथ हमेशा रहती है, मैन पावर की या फिर रिसोर्सेज की और एवरीथिंग की, एंड दे नीड टू create a policy or a strategy for the entire mass, है ना, almost every, not every time but the entire population. और दूसरा ये वेलफेयर नेचर में होता है, तो इनके फंड्स की भी प्रॉब्लम होती है. दूसरा एक करप्शन या इनएफिशिएंसी इन गवर्नमेंट मैकेनिज्म. सो लॉट मेनी डिफिकल्टीज आर देयर इन इम्प्लीमेंटिंग एंड क्रिएटिंग अ पॉलिसी. तो इसमें कई चैलेंजेस होंगे, है ना, बट स्टिल यू कैन फाइंड सम key points here, and I'll be reading it for you. Problem and issues confronting a sector are subjected to expert analysis. That what I was talking about. कि केवल पॉलिसी मेकिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्निंग पॉलिसी मेकिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको किसी फील्ड का भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा. तो जब आप एसओपी लिखते हो या फिर जब आप कॉलेज में जाते हो या इंटरव्यू देते हो, तो आप सिर्फ पॉलिसी पॉलिसी बोलोगे तो नहीं इम्प्रेस होंगे. You need to also identify in what area you would like to work. आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हो, जैसे डीपीपी वाले हैं, दे कैन वर्क इन, मतलब होता है कि उनका अलाइंड है कि डेवलपमेंट रिलेटेड पॉलिसीज पे बात होगी. सिमिलरली अगर आप हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज पे काम कर सकते हो या फिर सोशल इश्यूज बेस्ड पॉलिसीज पे काम कर सकते हो, तो पॉलिसी के साथ, मतलब पॉलिसी मेकिंग के साथ एक फील्ड एक्सपर्टीज, एक फील्ड रिसर्च और फील्ड की वो अवेयरनेस भी जरूरी है. तो दूसरा चीज जो है वो आपको बता ही दिया गया कि लीगल अथॉरिटीज और लीगल कंप्लायंसेस को भी वो करना है, फॉलो करना है, एंड फाइंडिंग आउट विच अथॉरिटी कैन डू व्हाट, क्योंकि हर पॉलिसी के लिए आप अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते. तो आपको पता होता है कि जैसे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है. गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम का ऑफिस होता है, विच काइंड ऑफ हेडिंग द इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट. फिर ब्लॉक्स में बीडीओ का ऑफिस होता है, फिर ग्राम पंचायत का ऑफिस होता है. सो यू नो द मैन पावर स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर सिस्टम. सो व्हेन यू ब्रिंग इन पॉलिसी, और आपको फिर ट्रेन करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा राइट मैन पावर को, तो हम जनरली क्या करते हैं, डीएम को दे देते हैं कि ही कैन एलोकेट द ह्यूमन रिसोर्स टू द पॉलिसी. फिर क्या होता है, डीएम देखता है उनके पास भी मैन पावर कम होते हैं, तो देयर आर न्यूमरस अदर लीगल, जो वो लीगल या फॉलो की गवर्नेंस बेस्ड चैलेंजेस आते हैं, वो भी आपको समझना पड़ता है ना. फिर उसके बाद जो जो कंट्रोलिंग बॉडी है या फिर जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, उनके बीच में आपको क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसे, मतलब हु विल डू दैट, है ना, इस पे भी आपको बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है. तो बेसिकली ये पूरे पॉइंट का पर्पस ये है कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड एंड आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच मेक्स अ पॉलिसी गुड. इट्स ऑल्सो अबाउट इंडियनाइज पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आप इंडियन इन्वायरमेंट में इंडियन गवर्नमेंट की मशीनरी के साथ कोई पॉलिसी पे विचार करते हो, और सेम ऑब्जेक्टिव के लिए अगर अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए बात करते हो, तो दोनों में डिफरेंस होगा. क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट, है ना. तो फेडरल सिस्टम है, 3 टायर डेमोक्रेसी है, आपका एग्जीक्यूटिव बॉडीज के भी कैसे मर्ज होता है सेंट्रल टू स्टेट, ये सब आपको समझना पड़ेगा. ठीक है. बाकी जो है एक पॉलिसी मेकर को अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड में क्या होता है कि रेगुलर वो करता रहना, डायनेमिकली रिसर्च करते रहना पड़ता है, लर्निंग करती रहनी पड़ती है. यू नीड टू बी वेरी अपडेट योर सेल्फ
in all the aspect of your field and the policy making and the new aspects which are coming to your field. ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तो ये सब चीजें जरूरी हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए. एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट, यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉर नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, द इंटायर इंडियन जो गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वेदर इट इज इन टर्म ऑफ industrial development or economic development or socio-economic development या social issues से to winning social issues or all the challenges that we facing within the states, है ना, इन सब से लड़ने के लिए पॉलिसी जो है वो बहुत क्रूशियल है. रही बात ट्रेनिंग और एजुकेशन की, दैट यू ऑल नो, है ना, करेंटली वी आर लेफ्ट विथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. अजीम प्रेम जी का आप लोगों ने दे ही दिया. IIT बॉम्बे जो है ओनली फॉर दोज हु आर इधर बीटेक और 5 year प्रोग्राम आपने एमए कर रखा है. IIT दिल्ली हैज स्टिल नॉट पब्लिश्ड देयर when they are going to take admission or whether they will start this year or not, ये भी अब क्वेश्चन मार्क है. आई एम बैंगलोर का जो पॉलिसी मेकिंग का जो कोर्स है, जो PGP प्रोग्राम है, दैट इज फॉर बेसिकली दैट इज फॉर people who are already in government and or highly experienced in related field. So you have TIS where the main course of public policy is public policy and governance, but there are many other courses which deals with different type of policies, जैसे health policy है या natural resource governance है या फिर ये अलग अलग type के या component के policies पे ये पढ़ाते हैं. ठीक है, तो अगर water policy में अगर आपको interest है तो you can also opt for शिवनादर यूनिवर्सिटी का वाटर पॉलिसी प्रोग्राम. यहाँ पे आपको यू कैन ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप ऑफ 15,000 पर मंथ. ठीक है, तो ये अच्छा कोर्स है ये भी. एंड देयर कुड बी सिमिलर अदर ऑप्शंस दैट यू माइट हैव, जैसे कुछ प्राइवेट भी हैं, जिंदल ग्लोबल स्कूल पब्लिक सेक्टर का स्कूल है, या फिर देयर विल बी कोर्सेज विथ CUCET ऑल्सो. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. ये मैंने ज्यादातर मेजर प्रोग्राम्स को किया हुआ है. एंड अल्टरनेटिवली अगर आप DS का कोर्स करते हो, वहां से भी पॉलिसी मेकिंग के फील्ड में जा सकते हो. सो DS इज लाइक कि पहले आपने फील्ड एक्सपर्टीज लिया एंड देन यू टुक द पॉलिसी ट्रेनिंग. तो आप पैरेलली पॉलिसी के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ट्रेन हो सकते हो, या फिर उसके बाद प्रोग्राम के बाद भी आप पॉलिसी का कोई कोर्स करके यू कैन गो टू in policy making area. So DSB that can act as and that can be a important step, मतलब एक step या loop line to begin public policy. ठीक है, और जो जॉब ये सब चीजें भी बहुत पूछते हैं आप लोग. तो बेसिकली इन ऑल टाइप ऑफ जॉब प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आपको वैकेंसीज निकलती हैं. गवर्नमेंट भी आपको, जैसे पहले गवर्नमेंट क्या होता था ना, एक ही तरह का एम्प्लॉय रखती थी, कमीशन एम्प्लॉय रखती थी. आजकल ये एक्सपर्ट्स के लिए नॉन कमीशन जॉब भी निकालते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के नए पॉलिसीज हैं वहाँ जो हायरिंग हो रही है वो कमीशन हायरिंग हो ही नहीं रही है. जैसे अगर स्मार्ट सिटीज का ये है, या फिर रूर्बन है, या फिर स्वच्छ भारत अभियान है, ये सब जितने भी तुमने पॉलिसीज सुने होंगे, इसमें गवर्नमेंट कमीशन एम्प्लॉय नहीं रही है. स्मार्ट सिटी में तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग टेंडर्स टू डिफरेंट कंपनीज. तो आप जैसे मान लो कि KPMG है, KPMG ने किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लिया, तो ये भी हायर करते हैं पॉलिसी ग्रेजुएट्स को. ठीक है, क्योंकि उस समय उनको MBA से ज्यादा बेटर ऑप्शन जो लगता है वो आपका पॉलिसी ग्रेजुएट्स लगते हैं. तो गवर्नमेंट के ये तो डायरेक्ट हो गया जो सीधा सीधा आपको स्मार्ट सिटीज में या रूरबन में या इसमें हायर करे, या फिर पैरेलल टू, मतलब पैरेलल नहीं, अल्टरनेट वे क्या है कि गवर्नमेंट जब किसी को प्रोजेक्ट देती है तो प्रोजेक्ट में फिर आपको हायर किया जाता है, तो प्राइवेट कंपनीज का जॉब हो गया. सो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी से पास आउट है, वो अल्टरनेट वे में ही है. मतलब इधर दे आर वर्किंग इन गुड कंसल्टिंग कंपनी विच आर बेसिकली कंसल्टिंग गवर्नमेंट ओनली फॉर पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, तो नेक्स्ट है NGOs. अब कई सारी बड़ी NGOs हैं, जैसे कादम्बरी है या फिर प्रधान है, तो वहाँ पे भी दे आल्सो वर्क फॉर मेनी पॉलिसीज इशूज, रिसर्च का काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं. तो वहाँ पे भी दे फ्रीक्वेंटली कंसिडर यू एज एन वेरी गुड रिसोर्स. और कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है अपने यहाँ पे. तो जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, नाउ एवरी स्टेट इज रियलाइजिंग दैट पब्लिक पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट स्किल्स.
क्योंकि आप किसी के समझदारी पे भरोसा नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ही टॉक्स गुड. सो वी नीड अ पर्सन हु कैन लिटरली डू गुड इन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एरिया. तो अब ये लोग भी हायर कर रहे हैं. और पीपीजी कोर्स का, हैदराबाद के पीपीजी कोर्स का तो पूरा बैच एक बार तेलंगाना गवर्नमेंट ने हायर कर लिया था. सो मतलब बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अब वैकेंसीज आती है. चलो पैंडेमिक के बाद थोड़ा पैसे कम है, टैक्स कम आ रहा है, तो थोड़ा कम हायरिंग है, बट दिस वुड बी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एम्प्लॉयमेंट होती है. एंड कॉर्पोरेट्स कैन ऑल्सो कंसिडर यू वेरी गुड रिसोर्स. मैं तुम्हें बताया जैसे जितने भी ऐसी कंपनीज हैं जो रूरल सेक्टर में या फिर मास लेवल पे काम करती है, they find you guys as a good resource for their all kind of activities. चाहे वो गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग करने की बात हो, या फिर सिटी ये विलेज लेवल पे, या फिर फील्ड लेवल पे अवेयरनेस फैलाने की बात हो, ये सारी जगह पे जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाते हो कॉर्पोरेट्स के लिए. सो कॉर्पोरेट्स कैन ऑल्सो हायर यू इन देयर प्रोफाइल. और सो मैंने स्मार्ट के सारे प्रोस्पेक्टिव साथ में ही बताना शुरू कर दिया. सो आई डिड नॉट कीप इट अवे फ्रॉम द लेक्चर. सो यू ऑल नो व्हाट डू वी थिंक अबाउट दैट. तो कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हारे मतलब मेरे लिए, तुम लोगों को इस सब चीजों के बाद बोलो. सर हेलो. हाँ बताओ. सर जो आप कॉर्पोरेट को लेकर बता रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, वो थोड़ा और पर्टिकुलरली थोड़ा बता सकते हैं कि कैसा क्या हाँ होता है? बिल्कुल. जैसे जैसे ना बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म. ठीक है, ये मैं भूल ही गया तुम्हें बताना. बैंकिंग का जो प्रोडक्ट होता है, इट इन्वॉल्व्स फॉर मतलब इट इज फॉर द इंटायर मास पॉपुलेशन. ठीक है, ओके. मतलब उनका तो ऐसा है नहीं कि कुछ ही लोग उनका सर्विस लेंगे. अब हम्म. ऐसे जगहों पे भी बहुत वैकेंसीज निकलती है. तो जैसे माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है ई सैफ, ठीक है, जी. तो दे गेट टू मतलब वो प्लेसमेंट लेते हैं हर साल पब्लिक पॉलिसी वाले बैच में. ओके. ठीक है. या फिर तुमको ये जितने भी एफएमसीजी कंपनीज हैं, ठीक है, या फिर एफ तुम्हारा एफएमसीजी में कैसा रहता है सर? देखो जैसे रूरल मार्केट्स हैं, ठीक है, हाँ. तो रूरल मार्केट्स में आपको वहां पे यू कैन नॉट पिच योर प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट लाइक यू डू इट इन अर्बन मार्केट. हम्म. आपको अपना प्रोडक्ट भी वेलफेयर स्कीम की तरह प्रोजेक्ट करना पड़ता हाँ हाँ, बिल्कुल है ठीक ना. है. तो वो उस पे पूरी क्रिएट करनी पड़ती है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विच एन एमबीए इज नॉट एबल टू डू दैट. ओके सर, है ठीक ना, है ठीक. बिकॉज ग्राउंड वर्क आपका बहुत ज्यादा होता है ना. जैसे जैसे आईटीसी का ये है हाँ वो. ई प्रोफाइल ये सब है, तो ठीक उसमें है यू ठीक. कैन मतलब अभी अभी जैसे तुम अपॉर्चुनिटी वाला फोल्डर भी हमने डाल रखा है, तुमने देखा होगा अपने हम्म. पुराने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए. तो जी. तुम देखना उसमें कई सारे कॉर्पोरेट बेस्ड जॉब है वेयर दे हैव ठीक. आस्क्ड फॉर स्पेशली आस्क्ड फॉर पॉलिसी और सोशल वर्क ग्रेजुएट्स. बिकॉज ठीक आप है लोगों सर. का ना ग्राउंड वर्क जो होता है या फिर जो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है सोसाइटी की, वो कहीं बेटर होती है एक एमबीए से. ठीक है है सर, ना, तो ठीक. इसलिए अब तो कॉर्पोरेट्स आर वेरी रेडिली हायरिंग दोस यू पीपल. है ना, क्योंकि एक तो ये भी होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी सैलरी के मामले में उतनी नहीं होती. है ना, हम्म. तो ठीक. और आप एडवांटेजेस भी हो जाते हैं उनके लिए. हाँ, ये तो है. ठीक है, कोई और क्वेश्चन? और एक मेरे को ही है सर, एक और. बोलो. तो जैसे अभी सीएसआर वगैरह में अगर हम जाना चाहें, पॉलिसी वाले भी जाते हैं इसमें क्या, हाँ सीएसआर में? हाँ हाँ हाँ. मतलब देखो तो इसमें भी. एक हाँ. बेसिक बेसिक स्किल्स तो हर कोर्स में है ना. अंडरस्टैंडिंग हम्म. अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी हम्म. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट मतलब विच इज नीडेड टू चेंज द सोसाइटी. तो जी. ये लर्निंग तो सबको होती है, हर कोर्स में होगी. हम्म. है ना, एंड विद दिस लर्निंग यू कैन बी पार्ट ऑफ एनी सीएसआर प्रोजेक्ट्स. और तुम एक पैरेलल एक और इम्पोर्टेंट काम भी कर सकते हो ना, कि गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस को समझना. है ना, हाँ उसके जी. लीगल ये कॉम्प्लिकेसीज को समझना. तो ये तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल होता है which दूसरे सोशल वर्क प्रोग्राम में नहीं होगा. ठीक है सर, ठीक ठीक है. है, ओके. तो वो हाँ. तुम्हें उसके लिए भी एलिजिबल बनाता है. ठीक है सर, समझ गया. ओके सर. ठीक है.